The fact is today India is not a developed country yet. But we want to become a developed country. That ever since we got independence, why a target was not set? Why there was no effort, no perceptible steps taken to make India a developed country? Why there were no concrete agendas of the government, a vision which says that India should reach there in a particular frame of time? You have to plan for your future. Without planning, you can't just move in darkness. We Indians are one of the most gifted people. Our civilization is one of the oldest in the world. Our heritage is something which we feel proud about. In 1947, all these Asian countries except Japan, in fact, India was above many of them. You see today, the per capita GDP of Singapore is almost 20 times more than India's GDP. If you see China's GDP, almost 5 times of India's GDP. How did this happen? So that is how today I want to highlight. If we collectively dream together, then nothing is impossible. So in 2014, when Prime Minister Modi ji took over the reign of this country, probity in public life is so important. If you lose the credibility, then you cannot deliver. So when we celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav, the 75 years of India's independence, so Prime Minister Modi ji has set the target that next 25 years, from now to 2047, India has to become a developed country. And if you see all the indicators, all those things which are visible on the ground, there's no reason to have any doubt. And today I am giving full guarantee. My guarantee means what? Modi ka guarantee. We are going to become a developed country by 2047. Today, we are the fastest growing economy in the world. Amongst all the big economic nations, amongst G20 nations, we are the fastest growing economy. Today, in every parameter if you see, right from high-end chip making efforts to small Atmanirbharta effort in stand-up, start-up, all other activities, you see throughout, from the development in the extreme border areas to the infrastructure what we are seeing in the cities, we all Indians, so you will be witnessing this journey. That is why the universities and colleges are chosen as the venues, because this Amrit Kal ka journey is going to be undertaken by you all. If you are 20 years old now, you will be 45 years old then. So you will be still youthful. So this is such a critical period, and who will not be fortunate enough to see during your lifetime your nation becoming a developed nation? We feel that our past generations were a little unfortunate because they have lived their life not realizing the dream of making your nation one of the leading nation. But you all are going to be lucky because during your time you are going to see our motherland India becoming a developed nation. So that is why this is a journey which we have to undertake together. Now, talking about the efforts of the government, because it has to be initiated by the government, supported and backed by the citizens of this country, because after all this is something which we have to have a collective effort to achieve our target. In the first term, the basic step, I'll just briefly refer to that. Majority of the Indians were out of the mainstream growth. There was no inclusion of majority of the people in your growth story. Financially, they were excluded. So one of the major steps taken was the Jan Dhan Yojana. So I went to Itanagar, that is my home state in Arunachal Pradesh. When I went to launch Jan Dhan Yojana, many people were not aware of that. What is Jan Dhan Yojana? And some of the critics were questioning, what is the point of opening bank account where you have no money to put into that account? They even confronted me. अरे सर आप लोग बैंक अकाउंट तो खोलवा दिया सबका, लेकिन उसमें पैसे ही नहीं है, तो अकाउंट का क्या मतलब है?
अब पता चला ना वो अकाउंट का क्या मतलब है। अब उसी अकाउंट में ही भारत सरकार का जितना स्कीम्स का पैसा जाता है वो उसी अकाउंट में ट्रांसफर होता है। उसी अकाउंट से आपका सारा कामकाज पूरा चलता है। वही एक तरीके से आपका आइडेंटिटी कार्ड जैसे बन गया, आधार कार्ड का साथ में कोई लिंक है। Now this is a small step taken that time, but it is a giant leap. Now in the third term, Modi ji said during the election the whole country will be busy in the election. Political parties will be busy in election, ministers, MPs, everybody will go for the election campaign. उस बीच में ऑफिसर क्या करना है, सारा ऑफिसर को बताया कि पहले इलेक्शन के समय में जिसका ड्यूटी नहीं लगता था वो छुट्टियां मनाते थे, अभी ये नहीं होगा। वो इलेक्शन चल रहा है देश का, आप हमारा तीसरी टर्म सरकार आते ही पहला 100 दिन में क्या करना है वो ब्लूप्रिंट तैयारी करते रहिए। आप लोग सबको लगा दिया काम में, यानी कि एक दिन हम नष्ट नहीं करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबको कहा कि इलेक्शन समय में ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। जैसे ही हमारा नया सरकार बना, तीसरी टर्म, प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते ही सारा मंत्रियों को कहा अब जो तैयारी की है हिसाब किताब देना होगा पब्लिक को। 5 साल का हिसाब अलग से देंगे, हर साल का हिसाब देंगे, लेकिन पहला 100 दिन हमारा सरकार का फर्स्ट 100 डेज का जो ब्लूप्रिंट एक्शन प्लान रेडी है उसको इंप्लीमेंट करना है और 100 दिन का अंदर में हम लोग जनता को बताना है। और 100 डेज में जो काम करना सारा करके हमने 100 डेज का काम पूरा इंप्लीमेंट करके हम रिपोर्ट कार्ड बना करके जनता का सामने में पेश कर दिया है। 100 डेज में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के गरीब का घर बनाने तक, किसानों को सब्सिडी देने से लेकर के एक स्टूडेंट लोगों को इंटर्नशिप देने तक, जितना भी हमारा प्लान था हमने 100 डेज का, इनफैक्ट 100 डेज से पहले ही हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आप पढ़ने जानते हैं, दिमाग अप्लाई करके काम तो कोई भी कर लेगा, असली काम तो वो है जो जमीन पे जाकर के लोगों का प्रॉब्लम को देख करके उसका दिल को छू करके उनका समस्या को हल करके आ सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा सबको, हर एक मिनिस्टर को नॉर्थ ईस्ट विजिट करना चाहिए, बॉर्डर विजिट करना चाहिए, गांव-गांव जाना चाहिए। तो 2014 में MOS होम होते ही मैं गुंजी गए। गुंजी एक जगह है, अभी तो गाड़ी रास्ता बन गया, आप लोग भी जा सकते हैं। मानसरोवर वो गुंजी से होके जाते हैं। और हिंदुओं के लिए तो मानसरोवर और कैलाश पर्वत बहुत ही पवित्र स्थल है। तो गुंजी में हम हेलीकॉप्टर से सीधा गए, 2 घंटे 50 मिनट दिल्ली से गुंजी पहुंचने में लगा। तो वहां पहुंचते ही मैंने पूछा वहां के लोगों को कि आप नहीं सोचते हैं कि कभी आपके यहाँ में गाड़ी रास्ता पहुंचे? बोले कि साहब हम लोग ने तो गाड़ी रास्ता का सपना छोड़ दिया, हमारा यहाँ कभी जिंदगी में गाड़ी आएगा, गाड़ी रास्ता बनेगा, ये हम लोग ने सोचना छोड़ दिया है। 2014 में मैंने उनको बोला आप मायूसी मत होइए, अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गया है, हम लोग का समय में ही 4-5 साल में ही आपका यहाँ रास्ता पहुंचा देंगे। ये 2014 में मैंने बोला और 2018 में रास्ता पहुंचा दिया, ऐसा काम किया है। तो ये जो इतना जल्दी जो चीज होते हुए आप देख रहे हैं, तो आप खुद को एक गौरव होगा। तो विकसित भारत का जर्नी को बहुत मुश्किल सोचना नहीं है। यू हैव ऑलरेडी टेकन योर सब्जेक्ट, यू आर ऑलरेडी परस्यूइंग योर चूजन करियर। अब हम क्या करते हैं सरकार में कि आपका सपना को पूरा करने के लिए we will become the wings beneath your wings। तो आपका सपनों का पंख, आपको हवा देने के लिए सरकार जो है उसको आपके लिए सीढ़ी बनाना है, आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट करना है, आपके लिए रास्ता बनाना है। तो अब आपका सपना और हमारा संकल्प, आप अगर पढ़ा लिखा होकर के आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे काम करने के लिए, आपका सपना पूरा करने के लिए हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत कम लोग इसमें कामयाब होता है।
और उसका एस्पिरेशंस को फुलफिल करना। तो इसीलिए लॉट्स ऑफ स्कीम्स आपका स्लाइड के दौरान देखा होगा, यूथ लोगों को इंटर्नशिप के माध्यम से जुड़ना, फिर आपका स्टार्टअप स्टैंडअप, दोस्त हु आर वेरी इनोवेटिव क्रिएटिव, दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो इनोवेशन से लेकर के डिजाइनिंग एट द वेरी इनिशियल स्टेज जो आप करते हैं कॉलेजेस में, वो आपको अपने अपने तरीके से आप शुरू करना है। जैसे स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब वगैरह, जहाँ लैब में एक्सपेरिमेंट करके उसमें लैंड तक ले जाना। तो इसी प्रकार से आपका स्टैंड अप हो, स्टार्टअप हो, या कोई भी जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स का डिटेल्स है, आप बीच बीच में देखते रहना चाहिए कि पोर्टल्स में अलग अलग भारत सरकार का जो वेबसाइट्स है, यू मस्ट सी दैट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड वेयर गवर्नमेंट इज गिविंग प्रायोरिटी। फिर अपना अपना कॉलेज का आपका एकेडमिक सेगमेंट में आप आपस में बातचीत करके कहाँ कहाँ रास्ता खुला है। हर आदमी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ही नहीं करेगा, वो जमाना तो चले गए हैं कि पढ़ के मुझे नौकरी करना है। नौकरी क्या होता है? नौकरी मतलब आप किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, सरकार का किसी फार्म में भी काम कर सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं, या आप अपना क्रिएट किया गया ऑफिस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के काम कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि यू क्रिएट जॉब फॉर अदर्स, यू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड देन यू क्रिएट employment opportunities for other people। तो ये तो आपके हाथ में है, टेंशन में मत रहिए। मैं आपको बहुत ही मैं स्ट्रेस करके इस बात को कहना चाहता हूँ कि लाइफ में हर आदमी आप एग्जैक्टली जो चाहता है वो मिलता नहीं है, और कभी कभी आप जो नहीं सोचता है वो मिल जाता है। तो डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस डेस्टिनी तक पहुंचाने में आपका जो मेहनत है वही आपको वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन मेहनत के बिना, डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं होता है। मैंने जब व्हेन आई वाज इन हंसराज कॉलेज दिल्ली में, मैं तो गांव में थे, फिर हंसराज कॉलेज में आए। मैं तो पब्लिक स्कूल से तो पढ़ा नहीं है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग था। मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, गाँव में थे, तो हम तो बहुत बड़ा होने तक कोई फैसिलिटी देखा नहीं था, लेकिन मेहनत तो मैं करता था। मेरे टीचर्स थे यूपी और बिहार से, काफ़ी टीचर हमारे वहाँ आते थे। जो 1962 चाइना का साथ जो वार हुआ था, उसमें मेरे गांव जो है वो चाइना का कब्जे में चले गए। फॉर 1 month माई होल डिस्ट्रिक्ट वॉज कैप्चर्ड बाई द चाइनीज आर्मी। तब से मेरा एक दिल में एक जलन था, मतलब एक आग, गुस्सा था कि हमारा देश का जमीन को 1 महीने के लिए चाइनीज लोगों ने क्यों ऑक्युपाई किया है। तो उस समय से जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म, ये तो पूरा भरा हुआ था, बचपन से माहौल भी ऐसा था। आप लोग पुणे को तो कैप्चर किया नहीं, इसलिए आप लोग का तो जलन नहीं हुआ होगा। 1947 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा था वो भी दूर हो गया, बहुत साल हो गया, तो वो भी बुझ चुका है। मेरा तो फ्रेश गुस्सा, और मैं कुछ भी करूंगा मगर देश को मजबूत बनाने के लिए मैं जरूर कुछ करूंगा, ये आग मेरे दिल में बचपन से था। तो मैं मेहनत किया, पढ़ता था, हमारे टीचर से रामायण महाभारत ये सब पढ़ते थे, साथ साथ में बाकी चीज को मैं बहुत उत्सुकता से पढ़ता था। हर चीज मेरे दिमाग में कोई बता दिया तो मैं भूलता नहीं था। तो इसलिए मैं भले ही गवर्नमेंट स्कूल से आया हूँ, लेकिन जो पब्लिक स्कूल और कन्वेंट स्कूल से आने वाले बच्चों को मैं मेरा आगे जाने नहीं दिया, हम बराबर में रहे। क्योंकि आदमी जब ठान लेता है ना तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो फिर मैं हंसराज के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में जब मैं LLB पढ़ रहा था, उसी समय मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा संपर्क में आया। तो जो इतने सालों से आग लगा हुआ था मेरा माइंड में कि मुझे राष्ट्रवादी विचारधारा वाला किसी संगठन से जुड़ते हुए देश के लिए कुछ करना है, तो वो इमीडिएट कनेक्ट हो गया कि सरकार तो था दिल्ली में। जैसे मैंने 75 ईयर्स का कहानी बताया आपको शॉर्ट में, तब से 1947 में सरकार तो था। तो मेरे गांव में रास्ता क्यों नहीं पहुंचा, बिजली क्यों नहीं पहुंचा, गाड़ी क्यों नहीं आते हैं हमारे यहाँ में, सरकारी कोई भी फैसिलिटी हमारे गांव में क्यों नहीं पहुंचते हैं, और हमारा बॉर्डर एरिया इतना कमजोर क्यों है, चाइनीज ने हमारा गांव का 1 महीने के लिए हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर क्यों किया। ये सब सवाल होते 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 मैंने सोचा अगर मुझे राजनीति का क्षेत्र में जाना है तो मुझे ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ना है
जिसका विचार में देश सबसे नंबर 1 हो और जिसके विचार में राष्ट्रवादी कूद कूद की भरा हुआ हो। राष्ट्रवादी विचारधारा, नेशनलिज्म, ये होना चाहिए। पार्टी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ में आप लोग जितना बैठे हैं, यू हैव डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट आइडियोलॉजी। एक ही पार्टी में तो भर के नहीं जा सकते। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मुझे पॉलिटिक्स जाना है, उसमें पॉलिटिक्स जाएगा नहीं सोचा, जस्ट एबीवीपी से कांटेक्ट हुआ। लेकिन जब एबीवीपी से बाहर निकले तो फिर मैं सोचा कि अगर पॉलिटिक्स में जाना ही है तो बीजेपी के साथ कनेक्ट हुआ। उसके बाद 2004 पार्लियामेंट में आए तो मैंने कांग्रेस के साथ जो भी है एज ए ओपोजिशन एमपी मैंने लड़ाई किया। तो फर्स्ट फेज एज ए ओपोजिशन एमपी मैंने देखा है। मेरा गला भी दर्द हो गया था, सुनते नहीं थे। 2014 में जब मंत्री बना तो मैंने याद किया कि हमने कितना स्ट्रगल किया है। तो जो गांव, जो जगह दिल्ली का नजर में नहीं आते थे, जो दिल्ली का जहन में नहीं थे, आज आप सोच के देखिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नया कॉन्सेप्ट शुरू किया। ऑल द विलेजेस इन द बॉर्डर एरियाज, दे आर द फर्स्ट विलेजेस ऑफ इंडिया नाउ। उसको पहला गांव बोलने लगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला के हम लोग कभी कभी रेजिमेंटल टाइप में काम करते हैं। पहले तो सोचते थे ना, मैं मंत्री बन गया था, अब मैं हुक्म करूंगा, मंत्री बन गया मैं तो अभी बहुत पावरफुल हो गया। पूरा कॉन्सेप्ट 2014 के बाद मोदी जी ने चेंज कर दिया। अब मंत्री मतलब आराम के लिए नहीं है, अब मंत्री मतलब हुक्म चलाने के लिए नहीं है, अब मंत्री है मतलब सबसे पहला कतार में पहला नंबर पर खड़ा करके आप खुद को काम करना होगा। अब ये पुराना कॉन्सेप्ट चले गए। सारा मिनिस्टर्स को मोदी जी ने कहा कि हर एक मिनिस्टर अभी गांव में जाना है और गांव में सिर्फ जाके नहीं आना है, वहां सोना है। और सीनियर ऑफिसर्स को कहा कि आप भी जाके सोना है, तभी तो आप बातचीत करके तो लोगों का दुख सुख जो भी है वो आप दर्द को समझेंगे। आप 2 घंटे के लिए जाएंगे और नकली मिल करके सिर्फ फूल माला पहनाएंगे और भाषण देके वापस दिल्ली आ जाएंगे, इससे होगा नहीं। तो टोटल अप्रोच को हम लोगों ने चेंज किया है। मेरा नॉर्मल स्टाइल होता है बातचीत करने का, इंटरेक्शन का। आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो मुझे उसको रेस्पॉन्ड करने में और भी अच्छा लगेगा। और साथ में आप कुछ क्वेरीज है तो आजकल तो डिजिटल है, वेबसाइट है, आप जानकारी खुद प्राप्त कर सकते हैं। मगर आज के दिन क्योंकि मैं आपका कॉलेज में आए हैं, आप लोग डायरेक्टली मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं या मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन का स्वागत करूंगा। सचमुच में आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द वे द कॉलेज इज बीइंग मैनेज्ड और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे पूरा टीम, विकसित भारत का टीम ने जो ऑर्गेनाइज किया, थैंक यू वेरी मच। फॉर द विकसित भारत, you do what is best for you, but through that you can contribute to the growth of the nation. Any of you can join politics straight away also. But मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना पॉलिटिशियंस, लोग पॉलिटिक्स खेलता है। पॉलिटिक्स सब जगह में होता है। बिजनेस का अंदर में जो भयंकर पॉलिटिक्स आप सोच भी नहीं सकते हैं। प्रोफेसर्स लोग के बीच में बड़ा पॉलिटिक्स होता है। स्टूडेंट यूनियन में हर जगह पॉलिटिक्स होता है। हमारा इतिहास में सबसे पुराना प्रोफेशन पॉलिटिक्स है। इसलिए डायरेक्ट हार्डकोर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जुड़ना चाहता है तो भी जुड़ सकता है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट में कई डॉक्टर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई साइंटिस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने तो कई साइंटिस्ट लोग नॉमिनेट भी किया है, बड़ा अचीवमेंट किया है, एमपी बनाया। तो आप पॉलिटिक्स में है, सब पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, लेकिन फैमिली का अंदर में जल्दी ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं करना है। फैमिली में भी बहुत पॉलिटिक्स होता है, लेकिन प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मान लो कोई म्यूनिसिपल इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन या पार्लियामेंट इलेक्शन में करना चाहता है, जुड़ सकता है। लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं होके भी आप देश के लिए, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आप सब जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं एक खुला ऑफर आपको देता हूं। वी मस्ट वर्क टुगेदर, वी डोंट डिफरेंशिएट
between who is in which profession. After all, we are member of same team India. तो अभी जैसे अभी निवेदिता जी ने जो अच्छी बात कही है कि हम टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात कर रहे हैं, मगर जो हमारा मूलता जो हमारा विचार एज एन इंडियन, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, डिसिप्लिन, मैन मेकिंग से नेशन मेकिंग होता है, तो ये इमोशन को हम कहीं खोना नहीं देना चाहिए। जो एशिया के हमारा सोसाइटी है पारंपरिक होता है, ट्रेडिशनल होते हैं, और वो फैमिली वैल्यूज के साथ में कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। तो ये सब को सोचना है, लेकिन आप लोग गवर्नमेंट फंक्शंस, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को कभी भी उसको दूर करके मत देखिए, वो सारा आपके लिए ही होता है। So, computer science engineering student from Modern College of Engineering. So my question to you is that according to you, what are the parameters of Viksit Bharat? That is, what are the factors which define this nation or define our nation as a Viksit or developed country? See, when you say Viksit Bharat, a developed nation, it is from the Atmanirbharta. So we also started with Atmanirbhar Bharat, self-reliant, self-sufficient. So this Atmanirbhar Bharat will lead to Viksit Bharat. The parameters are in different forms. But when we say Viksit Bharat, if you go technically, say a country per capita income must be around 12,500 defined by the World Bank to be called as a middle income country. If you earn more than $16,000 per capita income, you will be considered as a developed nation. These are the parameters by different yardsticks. The real Viksit Bharat will be when there will be no poor Indian in our country. When every Indian is self-sufficient. When every Indian is not dependent on his survival to the other people. So that is my way of looking at Viksit Bharat. Thank you.